Hello everyone. Welcome back once again to my channel Insightful Maths. First video of number system class 9 chapter 1 I have already posted few days back, wherein we have already discussed few of the topics like the relationship between the different categories of numbers. After that, the decimal expansion of the number, right? So I mean, how do we identify if the number is a rational or an irrational number? That is already been done. After that, we have discussed how to show the rational numbers on the number line, and we have seen few of the examples like showing root 2 or root 3 on a number line. So this much we have already done. So what is the plan for today is I'm going to discuss first the questions from exercise 1.1. ठीक है, 1.1 के क्वेश्चंस पूरे करके after that we'll go ahead for exercise 1.2 and then we'll carry on in the videos to come. So what you're supposed to do now before I go further, if you have not liked and subscribed to my channel, please press the like button and subscribe to my channel. Okay, so exercise 1.1 question number 1 says, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? बेसिक डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स वी नो ऑलरेडी. कोई भी नंबर जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर p और q ये दोनों इंटीजर्स होते हैं और q जीरो नहीं होता, उसी को रैशनल नंबर बोलते हैं. अब आप देखो, एट टाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं है. कैन आई राइट जीरो एज 0/1? है ना, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं. इनफैक्ट एनी नंबर कैन बी रिटन विद डिनोमिनेटर 1. सो 0 इज एन इंटीजर, 1 इज एन इंटीजर, p अपॉन q फॉर्म में हो गया, जहां पर दोनों इंटीजर है, एंड 1 द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. सो आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज यस, 0 is a rational number. And what is the justification? Because 0 can be written as 0/1, wherein 0 and 1, they both are integers and the denominator 1 is not equal to 0. That's about question number 1. Next is question number 2. Now we have to find 5 rational numbers between 3 and 4. अब आप देखो, हम 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स ढूंढ रहे हैं. तो पहले तो 3 और 4 अपने आप में रैशनल नंबर जैसा दिखना चाहिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, लेट 3 बी रिटन एज 3/1 एंड लेट अस राइट 4 एज 4/1. ऐसे लिख सकते हैं. मैंने अभी अभी बोला था, किसी भी नंबर को विद डिनोमिनेटर 1 यू कैन राइट. अब इन दोनों के बीच में ना, वी ऑलरेडी नो, देखो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस अर्लियर, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. तो अब तो मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं 3 और 4, इनके बीच में मुझे सिर्फ 6 ढूंढने हैं. दैट इज वेरी मच पॉसिबल. फर्स्ट नंबर इज 3/1, सेकेंड नंबर इज 4/1. अब देखने में हमें लगता है 3 और 4 के बीच में तो और कोई नंबर है ही नहीं. सो हाउ टू डू दैट? The logic or the next step that we have to use here is the property of the equivalent rational numbers. Equivalent rational number, जैसे हमने equivalent fractions में भी पढ़ा हुआ है. कोई भी दो रैशनल नंबर जो इक्वल इन वैल्यू होते हैं, दे जस्ट लुक डिफरेंट, दोज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. एंड हाउ डू वी मेक इट? Just multiply numerator and denominator by any same number of your choice. जैसे मैंने अभी 10/10 लिया है. You could have used 100/100, 1000/1000, or let's say 15/15, whichever. So मैं दोनों को क्या करूंगी, 10 up and 10 down, I'll multiply. देखो अल्टीमेटली अगर मैं 10 और 10 कैंसिल कर दूं तो ये 3 और 4 ही है. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये दिखेगा कैसे. दिस इज 30/10 एंड दिस वन इज 40/10. 0 0 कैंसिल कर दो तो ये सिमिलर ही है, जो इनिशियल हमारा रैशनल नंबर था वही है. अब जितने भी फ्रैक्शन, जितने भी रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर 10 है एंड न्यूमरेटर इज लाइंग बिटवीन 30 एंड 40, उनमें से कोई भी आप पिक कर सकते हो. दैट इज योर आंसर. एंड दिस इज नॉट द ओनली आंसर, वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज. हमें तो सिर्फ 6 चाहिए, दिस इज वन ऑफ दिस. सो हम नेक्स्ट ले सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 and so on.
ठीक है. So this is how you can find 6 or many more rational numbers between any two numbers. Similarly, we have question number 3, which says we have to find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, exactly similar. Question number 3, एक नंबर है 3 by 5, दूसरा है 4 by 5. देखो ये दोनों ना like फ्रैक्शन जैसे दिख रहे हैं, जहां पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है. सिमिलर स्टेप यू हैव टू रिपीट. आप क्या करोगे, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 से नीचे करो. सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू नाउ 30 अपॉन 50 एंड 40 अपॉन 50. ऐसे मल्टीप्लाई करके ना इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना के हम इसका रेंज एक्सपैंड करते हैं. देखने में बड़ा हो जाता है बट वैल्यू सेम ही है. सो 30 से लेके 40 के बीच में कोई भी नंबर एज द न्यूमरेटर and denominator same as 50. आप कोई भी numbers pick कर लो, that will be your answer. हमें 5 नंबर चाहिए, so let's say this is 31 by 50, 32, 33, 34 and 35 and denominator will remain the same जो हमारे as per question चल रहा है. ठीक है? This is about question number 3. Question number 4 is now saying state whether the following statements are true or false and you have to give reasons for your answer. Every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. अब आप सबसे पहले ये वाला पिक्चर याद रखो. देखो सबसे छोटा सेट नेचुरल है. ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो आते हैं ना वो होल नंबर के अंदर आते हैं. ये दोनों सर्कल जो आते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर, ये दोनों इंटीजर्स के अंदर आते हैं. इंटीजर्स होल नंबर नेचुरल नंबर ये सब रैशनल के अंदर आते हैं. ठीक है. सो छोटा वाला सर्कल इज अ पार्ट ऑफ बिगर सर्कल. ओके, लेट मी जस्ट go now to the questions where we were. So every natural number is a whole number. This is yes. This statement is true because this is a set of natural number और इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, this is the set of whole numbers. The only difference between them is of 0. सारे whole numbers में natural number होते हैं except 0. ठीक है. Answer is yes. Next, every integer is a whole number. अब आप देखो होल नंबर के बाद जब मैं बड़ा सर्कल बनाऊंगी ना, दैट इज फॉर इंटीजर्स विच आर डिनोटेड बाय z. अब ये बोल रहा है सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं. बेटा आप देखो सारे के सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर आ रहे हैं. आप एक नंबर लाइन कंसिडर करो. दिस इज योर नंबर लाइन. ठीक है. नंबर लाइन कैसी होती है, 0, then we have positive numbers, then we have negative numbers. ठीक है. -1, -2, -3 and so on. ये सारे इंटीजर है. अब ये बोल रहा है सारे के सारे इंटीजर होल नंबर है. अब आप देखो मेरा होल नंबर तो यहाँ से शुरू होते हैं, 0 से जितने भी नंबर है टिल इंफिनिटी वो होल नंबर है. लेकिन नंबर लाइन पे जो नंबर्स है वो सारे इंटीजर है. इसमें नेगेटिव नंबर्स तो इंक्लूड नहीं हुए है ना. इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं. होल नंबर इंक्लूड्स यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड उसमें नेगेटिव नहीं आते हैं. सो दैट मीन्स every integer is not a whole number because whole numbers do not include the negative integers. Correct? Let's move now to the third point. Every rational number is a whole number. आप देखो पहले हमने लिया नेचुरल नंबर, उससे थोड़ा बड़ा है होल नंबर, उससे थोड़ा बड़ा है इंटीजर और उससे भी बड़ा है रैशनल नंबर. ठीक है. अब ये कह रहा है सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं. ये गलत है. आप देखो होल नंबर एक छोटा सेट है. सारे के सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर के अंदर नहीं आते, सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर आते हैं. ऐसा क्यों? अगर मैं देती हूँ, देखो रैशनल नंबर फ्रैक्शन जैसे दिखते हैं. आप किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन जैसा देख पा रहे हो? So if I take a fraction like 1 by 2, this is a rational number, but this is not a whole number. There are so many exceptions. ठीक है. तो हम बोलेंगे every rational number is not a whole number. In fact, every whole number is a rational number. Okay. Rational number is a bigger set. Okay. Moving to exercise 1.2. I am directly coming here because the theory of this has already been explained in the previous video. State whether the following statements are true or false. Every irrational number is a real number.
देखो रियल नंबर, लेट्स मूव वंस अगेन टू दिस मेन पिक्चर। रियल नंबर ना वो नंबर होते हैं जिन्हें हम एक्चुअली नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, है ना, जो वर्चुअल नहीं होते, जो एक्चुअली में अवेलेबल होते हैं। ऐसे सारे नंबर्स को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। रियल नंबर को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, या तो वो रैशनल हो सकते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा, नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रैशनल, और दे कैन बी इरैशनल नंबर। तो अगर कोई आपसे पूछे सारे रैशनल नंबर रियल होते हैं, ये ट्रू है। सारे इरैशनल नंबर रियल होते हैं, ये भी ट्रू है। क्योंकि रियल नंबर्स किस से बना होता है, या तो रैशनल या इरैशनल, ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है, every irrational number is a real number, this is true। सारे रैशनल, सारे इरेशनल, सब रियल ही होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, दिस इज ट्रू। ठीक है, रियल क्यों है, बिकॉज दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। सेकेंड पार्ट, every point on a number line is of the form root m where m is a natural number। अब ये कह रहा है अगर आपके पास एक नंबर लाइन है, इस पे जो भी पॉइंट है ना, इज इट ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, जहां पर एम एक नेचुरल नंबर है। तो अंडर रूट 1 हो सकता है, अंडर रूट 2 हो सकता है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। हम एम एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं, लेकिन नंबर लाइन पे मेरे पास नेगेटिव नंबर्स भी तो है, राइट, एंड अ नेगेटिव नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू द रूट ऑफ अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, सो आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, दिस इज फॉल्स, ये गलत है। व्हाई, बिकॉज we have negative numbers also on the number line which cannot be equal to root of a positive natural number। okay, थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। बेटा सारे इररेशनल नंबर रियल होते हैं। देखो रियल नंबर में हमने रियल नंबर को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, या तो रैशनल या फिर इररेशनल, है ना। रियल नंबर रैशनल भी होते हैं, रियल नंबर इररेशनल भी होते हैं। अब थर्ड पॉइंट इज सेइंग एवरी रियल नंबर इज इररेशनल नंबर, यानी सारे के सारे रियल नंबर सिर्फ इररेशनल होते हैं, ये तो रॉन्ग है। Right, we know the definition of real numbers, this is inclusive of rational and irrational। so हम क्यों इसको false कह रहे हैं, because real numbers includes rational numbers also। for example, we have 2, 2 means 2 by 1, जो एक rational number है, irrational number नहीं है। okay, so answer of third part is again false। next one, it is saying question number 2, are all the square roots of are the square roots of all the positive irrational numbers? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। दोबारा देखो, are the square roots of all the positive integers irrational? इसका मतलब जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 सो ऑन, है ना, इनके अगर मैं रूट निकालूंगी तो क्या वो सिर्फ इरेशनल होंगे? आप देखो, अगर मैं रूट 1 लेती हूँ दैट इज 1, ये इरेशनल नहीं है। अंडर रूट 2 ये इरेशनल है। अंडर रूट 3 ये भी इरेशनल है। बट इफ आई टेक अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2, it is not an irrational number, it's a rational number, it can be represented in the form of 2 by 1। okay, so question number 2 is saying कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है क्या वो इरेशनल होता है? आंसर इज नो। okay, question number 2 answer is no। you can show through these examples that we have some roots like under root 4 जिसका आंसर एक irrational number नहीं आता, वो एक rational number आता है। There are many other examples, for example under root of 16 that is equal to 4, 4 भी एक rational number है। ठीक है, so any of the examples you can quote because it is asking you to give the example of the square root जो एक rational number है। Moving now to question number 3, you have to show how root 5 can be represented on a number line। रूट 5, ऑल्दो इस तरीके का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, हाउ टू शो रूट 3, रूट 5 एंड ऑल दैट ऑन अ नंबर लाइन, बट अगेन वी आर गोइंग टू डू दिस। देखो ये एक इरेशनल नंबर है, सारे इरेशनल नंबर रियल होते हैं। रियल मीन्स उन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अब ना हमें सबसे पहले कोई भी नंबर मिले, सबसे पहले हमें ये समझना होता है इस नंबर को बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये नंबर बनता कैसे है।
√5। अगर मैं अंडर रूट के अंदर 4+1 ले लूं तो क्या मुझे √5 मिल जाएगा? ठीक है, गुड टू गो। 4 कैसे बनता है? 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। 1 को तो चाहे 1 स्क्वायर लिख लो, 1 क्यूब लिख लो, है ना, वो बेचारा सारी चीजें मान जाता है ना। अब आप देखो, जस्ट इमेजिन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अभी अभी आपको अजीब लग रहा होगा, बट दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक साइड है आपकी 2 सेंटीमीटर, ये रहा, एक साइड है आपका 1 सेंटीमीटर। तो एज पर दिस वन पाइथागोरस थ्योरम, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ए बी, हम ये कैसे निकालते हैं? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। इज इट नॉट मैचिंग विद दिस वन? इसका मतलब मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस हैज टू बी 2 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हैज टू बी 1 सेंटीमीटर. So whatever will be the length of the hypotenuse, that will give you the value of √5. Okay, and that we are going to show on a number line. Let's see how do we show √5 on a number line now. This is the number line. Okay. First of all, since it is a number line, 2 arrows should be there at the end. अब आप क्या करोगे? Using a ruler, let us do the marking here. Let's say this is 0, this is 1, this is 2, this is 3. Let me take few negative numbers here, -1, -2, so that at least it looks like a number line. अब आप क्या करोगे? 2 पे पहला मुझे देखो, मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ओ ए बी। लेट्स से दिस मार्क इट दिस पॉइंट एज ओ। अब ओ ए, अगर मैं इस 2 पॉइंट को ए मार्क करती हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब आप क्या करोगे? You have to draw a perpendicular here and the length, of course using a ruler. The length of this should be 1 centimeter. OA is 2 centimeter. A से लेके B तक हमने एक perpendicular डाला which is 1 centimeter. Now what you are going to do, आप O और B को join कर दो. Now this is a right angle triangle जिसके अंदर base is 2 centimeter, परपेंडिकुलर इज 1 सेंटीमीटर. सो ये जो O से लेके B तक का डिस्टेंस है, मैंने अभी अभी आपको कैलकुलेशन दिखाया था, O से लेके जो B तक का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू √5. यही तो हमें दिखाना था. तो अब आप क्या करोगे? फॉर यूज योर कंपास हियर, कंपास का नीडल रखो O पर. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज योर कंपास. हमने नीडल रखा O पर एंड पेंसिल हमने ओपन किया B तक. ठीक है, मुझे ये डिस्टेंस पता चल गया. अब आप क्या करोगे? विदाउट मूविंग इट, अब इस डिस्टेंस को ना आप ये नीचे लेते जाओ. आप इसको मेजर कर चुके हो ऑलरेडी. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ, टेक इट डाउन. इस डिस्टेंस को बस अपना कंपास को यूज करके जहां तक भी नंबर लाइन पे ये आता है वहां पर आपको मार्किंग करना है. अगर मान लो ये डिस्टेंस O से लेके यहाँ पर आता है C तक, make the marking at C and this distance OC, that is equal to √5. Okay, this is how we show an irrational number on a number line. ठीक है. Now, this was question number 3, the last question of exercise 1.2. In the upcoming exercises, for example 1.3 and so on, now the complexity of the topics will increase. आपको questions will be like, अगर आपको repeated form में given है, how to convert this in P by Q form, और how to identify इनमें से कौन सा rational है, कौन सा irrational है. So many interesting topics are about to come. So what you are supposed to do now is, please stay connected to the channel, start making this yourself, and please do not forget to subscribe. Thank you so much for watching. See you in the next video.